Hi, Adish. In this session, we are going to discuss about the neural network, right? So before starting this session, I'll give you a brief idea what is neural network is connected, right? So what is a network? First of all, we'll see what is a network. So network is basically the chain, like the computers are connected. If we are talking about the computer network, if we are talking about the peoples, how they are connected, that is overall the relationship chain is known as the network, right? So what is the neural network is connected, and what the topics we are going to cover in the later session. So these are some brief topics or brief introduction, we can say, like Python programming is what, machine learning is what, deep learning is what, neural network is what. We are going to discuss about these topics, right? So first of all, what is the neural network? So before starting the neural network definition, I'll give you a brief idea about what is a brain, right? So you know very well what is a brain, what is a human brain, and inside the brain there are lot of neurons, we can say billions and trillions of the neurons are there in the human brain, right? जो ब्रेन हमारा क्या काम करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द अदर सेल्स. वट एवर वी डू विद द ह्यूमन, it instruction comes from the our human brain, and other parts of the body cells do with the instructions, right? Basically, as human itself interact with the outside world, right? And they do what they do, they recognize a lot of things with the help of information stored inside the human brain, right? If we compare the human brain with the computers in a lot of parameters, right? Suppose we have a myth that computer is always smarter than the human brain, but in some situation this terminology becomes false, right? हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि अगर मैं आपको कोई कैलकुलेशन दूं, सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है, तो ह्यूमन ब्रेन काफ़ी टाइम लगा देगा उसको कैलकुलेशन करने में, बट इफ़ यू हैव द कंप्यूटर इट विल process very fast. But in some scenario computer becomes fails, right? Because human brain itself has a lot of neurons inside the human brains. Billions or trillions of the neurons are there. That is the, you can say, the stock of the information, right? Because we learn itself, we also learn it from our past experiences, right? So if we treat the computer itself as it learns from itself as well, then it becomes a kind of a smart learning, right? So a lot of kind of the learning is there, right? Reinforcement learning is there, supervised learning is there, unsupervised learning is there. So we'll talk about these topics later, right? So I'll give you a brief idea, a brief example, very simple example. I'm going to explain what is the purpose of the neural network, right? Suppose ह्यूमन जो ब्रेन है वो किस तरीके से ट्रीट करता है. सपोज मेरे पास मुझे एक कोई पिक्चर्स है ना, तो ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको समझ जाएगा ये किस चीज़ की इमेज है. सपोज मेरे सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि दिस इज ए पिक्चर ऑफ द कंप्यूटर. एंड मेरे सामने एक इमेज है एक ऑब्जेक्ट की, एक एनिमल की इमेज है, फॉर एग्जाम्पल डॉग एनिमल की मेरे सामने इमेज है, तो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस इज एन एनिमल, राइट? बट हाउ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज इट, राइट? सो कंप्यूटर किस तरीके से समझता है या मशीन किस तरीके से ट्रीट करती है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं. तो मशीन क्या करती है, उस एक्चुअल इमेज को कंपेयर करती है जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उससे कंपेयर करती है, राइट? अगर वो इमेज उससे मैच करती है तो वो बता देता है कि ये इमेज इससे मैच करती हुई है, फॉर एग्जांपल. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी इस सिनेरियो के अंदर. सपोज आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल, मैंने अभी एनिमल का एग्जांपल लिया था, डॉग का एग्जांपल, तो डॉग की कुछ प्री फीडेड एग्जांपल्स हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, हम अपने सिस्टम के अंदर डालते हैं. वो जो इमेज होती हैं, सपोज उन इमेज में अगर एग्जैक्ट मैच करता है तो सिस्टम इजीली आइडेंटिफाई कर देता है, बट ह्यूमन मिस्टेक कम करता है, सिस्टम मिस्टेक ज़्यादा कर सकता है. तो हमें उसको स्मार्ट बनाना होता है बाय गिविंग द मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द डॉग इमेज, राइट? एंड डॉग इमेज में लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ द डॉग्स आर देयर, अलग अलग तरीके के डॉग्स हैं.
तो अगर मैंने सिस्टम के अंदर एक तरीके की डॉग की इमेज डाल दी, मैंने उसको ये डॉग की इमेज दी, राइट, लेकिन उसके सामने दूसरे तरीके का डॉग आ गया, उसके सामने दूसरा तरीके का ऑब्जेक्ट आ गया, तो इट विल गेट कंफ्यूज्ड, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज, राइट. सो विल हैव टू फीड ऑल द डेटा एंड इट विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, राइट. नाउ so this is the basic concept how the system recognize, the machine recognize like human brains does, right. Now what is the neural network? I'll give you a brief idea. Suppose there are 10 people's team, right, और मैं उनको ब्रेक कर देता हूँ, है ना. पहली जो मेरी लेयर है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ लोगों की टीम बना देता हूँ, उसमें से मैं क्या करता हूँ, हर लोगों को, सपोज मुझे डॉग के ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना है, डॉग का आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑब्जेक्ट डॉग है या फिर कोई और एनिमल है, राइट. तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पहली लेयर की टीम होगी वो पहली लेयर की टीम को हम डिवाइड कर देंगे, लाइक दो लोगों की मैंने टीम बना दी, 3 लोगों की. पहली टीम क्या करेगी, हमारा फेस आइडेंटिफाई करेगी, सपोज डॉग का फेस आइडेंटिफाई करेगी. दूसरी टीम क्या होगी, सपोज वो बॉडी पार्ट जो मिडिल बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करेगी, वो उसकी एक्सपर्ट है, राइट. तीसरी जो टीम है सपोज वो लोअर पार्ट जो उसके पैर हैं या फिर लेग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी. क्लियर. तो तीनों को मैंने सब तरीके का डेटा दे दिया, राइट. पहली टीम क्या करेगी, वो उस डेटा को देखेगी, फेस को रिकॉग्नाइज करेगी, फेस को, जो प्रीफिडेड डेटा है उसके पास हर कैटेगरी के डॉग्स की इमेज होगी, अलग अलग तरीके की इमेज होंगी. कहीं पर डॉग का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्टैंडिंग पोजीशन में, कहीं पर लेटा हुआ हो सकता है, कुछ भी अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कहीं रनिंग पोजीशन में हो सकता है. मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, है ना, बट ह्यूमन कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. इस कैटेगरी में जो बात कर रहे हैं हम, जो इस टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन्स बहुत स्मार्ट होता है एज कम्पेयर टू मशीन. तो मशीन को भी स्मार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है. क्लियर हो गया. तो पहली जो लेयर है वो अलग अलग फील्ड की एक्सपर्ट होगी. पहले जो लेयर है वो अलग अलग फील्ड की एक्सपर्ट होगी. फॉर एग्जांपल जो पहली टीम है वो फेस रिकॉग्निशन के लिए एक्सपर्ट होगी. तो जैसे ही वो टीम अपना कंपाइल करके देगी, सेकंड टीम अपना कंपाइल करके देगी बॉडी पार्ट के लिए, एंड थर्ड टीम कंपाइल करके देगी लेग्स के लिए. तीनों का जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो मिडिल लेयर की टीम है वो उस रिजल्ट को कंपाइल करके फिर एक आउटपुट जनरेट करके देगी. वो बताएगी कि आपने, सपोज उन्होंने कुछ वैल्यूज दी होंगी, फॉर एग्जांपल, and both are trying to identify the image, right? And both are saying yes, this is a perfect image of the dog. And but in case of scenario, if machine does not have the information about a different type of the dog, it gets confused, right? So in this way, we try to break the myth about the machines, like it is always smarter, it is always faster, it's always give the correct result. But in this scenario, we can see easily, even we know that human brains is also the smart part, right? So we are trying to give the machine an intelligence with the help of artificial intelligence. That's why the machine also becoming the smart, right? So we'll discuss about these topics in the later session, right? So we'll join in that later session. That's the end of this session. And once again, thank you for joining this session. We'll discuss the rest of the topic in the next session. Thank you.